آج سے آپ کے سامنے درس حدیث کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر عقائد اہل سنت احادیث کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ اور صحیح بات یہ ہے، بنانے والا سب کو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے انبیاء اولیاء کو شان عطا فرمائی ہے کہ عام لوگ اگر مٹی ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں سونا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہیں۔ ہم کچھ لوگ ایسے خیالات کو شرک اور کفر کہتے ہیں اور اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا عین اسلام ہے، بلکہ اسی میں اسلام کا مزہ ہے۔ یہ شرک اور کفر اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کے بغیر دیے انہوں نے یہ مرتبے خود حاصل کر لیے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، جس کو جو دیا اور جتنا دیا صرف اللہ ہی نے دیا، اپنی مرضی اور پسند سے دیا، اس سے کوئی زبردستی چھین کر یا بانٹ کر نہیں لے سکتا۔ ہاں، اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 رکوع نمبر 10 سورہ آل عمران، ترجمہ: تم فرماؤ اے اللہ، تو ہی سارے ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے ملک سے عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنا ملک چھین لیتا ہے۔ الحمدللہ عز وجل، آج سے آپ کے سامنے درس حدیث کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر عقائد اہل سنت احادیث کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کو یہ تمام اس کے پارٹ کو سماعت کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو علم کا خزانہ حاصل ہوگا۔ پیارے بھائیوں، جس ذات نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کا نام اللہ ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وہ بے جوڑ ہے، سب کی اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو دیتا ہے کسی سے لیتا نہیں، سب کے لیے موت اور فنا ہے، اور وہ اس سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا، صرف وہی عبادت اور پرستش کے اور کیا ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، بندگی کے لائق ہے۔ جو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ مسلمان نہیں۔ اس کی مخلوق میں انسان بھی ہے، بلکہ انسان اس کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس نے کچھ ایسے مخصوص بندے ہر زمانے میں پیدا فرمائے جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ نبی اور رسول کی گنتی 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں سب سے آخری نبی جن کا لائے ہوا دین اسلام قیامت تک موجود رہے گا، ان کا نام اسمی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ نبی اور رسولوں کے لائے ہوئے دین پر چلنے اور دوسروں کو چلانے کے لیے خدا تعالیٰ ان کی امتوں میں کچھ اور بندے پیدا فرماتا ہے جن کو اولیاء، علماء اور بزرگان دین کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے اپنی دوسری مخلوقات میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، اسی طرح انبیاء اولیاء کو بھی عام انسانوں کی طرح نہیں بنایا ہے، ان کو بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں اور مقام اور مراتب عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نوازشات ان پر اپنی طرف سے کی۔ مٹی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور سونا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، غلام بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور آقا بھی اسی نے بنائے ہیں۔ فقیر اور بادشاہ، منگتا اور داتا، مانگنے والا اور دینے والا، پانے والا اور بخشنے والا، کھانے والا اور کھلانے والا، محتاج اور مختار، سب کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ کریم رب العزت ہی ہے۔ پیارے بھائیو، جس طرح مٹی اور سونے میں اتنا فرق ہے کہ حساب لگانا مشکل ہے، منگتا اور داتا، غلام اور آقا، فقیر اور بادشاہ میں معمولی نہیں بڑا فرق ہے، اسی طرح انبیاء اولیاء عام لوگوں میں بھی اتنا فرق ہے کہ جس کو بیان کرنا دشوار ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے، بنانے والا سب کو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے انبیاء اولیاء کو شان عطا فرمائی ہے کہ عام لوگ اگر مٹی ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں سونا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہیں، ہم منگتا ہیں، وہ داتا ہے، ہم فقیر ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے خیالات کو شرک اور کفر کہتے ہیں اور اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا عین اسلام ہے، بلکہ اسی میں اسلام کا مزہ ہے۔ یہ شرک اور کفر اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کے بغیر دیے انہوں نے یہ مرتبے خود حاصل کر لیے ہیں۔ یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ انبیاء اولیاء نے خود جو مراتب ہے، یعنی انبیاء جو معجزات دکھاتے ہیں، اولیاء کرام جو کرامات دکھاتے ہیں، وہ خود اپنی طاقت سے دکھاتے ہیں، اللہ کے دینے سے نہیں دکھاتے، تو اب یہ شرک ہوتا۔ لیکن انبیاء کا معجزہ اور اولیاء کی کرامت یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عطا اور اس کی کرم نوازش سے ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا، کیسا عقیدہ
کہ वो औलिया किराम की करामत को शिर्क कहना, अंबिया किराम के मौजज़ात को जो उन्होंने मुर्दे ज़िंदा किए, या अंबिया किराम ने बीमारियों को शिफा अता फरमाई, या औलिया किराम ने जो कि अपनी करामत से अल्लाह के हुक्म से बीमारों को शिफा दी, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर की, इन बातों को शिर्क कहना ये सरासर जिहालत है। बात सिर्फ इतनी सी है, जिसको जो दिया और जितना दिया सिर्फ अल्लाह ही ने दिया, अपनी मर्जी और पसंद से दिया, उससे कोई ज़बरदस्ती छीन कर या बांट कर नहीं ले सकता। हाँ, अपनी मर्जी से जिसको चाहता है जितना चाहता है अता फरमाता है। यहाँ तक कि अपने फजल व करम और अता से उसने कुछ मखसूस बंदों को बेमिसल व बेमिसाल बना दिया, मालिक व सरवर बना दिया, गैबदार और मुख्तार बना दिया, आम लोगों का उनको आका और बादशाह और दाता बना दिया। खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पारा 3 रुकू नंबर 10 सूरह आल इमरान, तर्जमा, तुम फरमाओ ऐ अल्लाह तू ही सारे मुल्क का मालिक है, जिसको चाहता है अपने मुल्क से अता फरमाता है, जिससे चाहता है अपना मुल्क छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। सारी भलाई तेरे कब्जे में है, तू जो चाहे वो कर सकता है। रात को दिन में दाखिल फरमाता है और दिन को रात में, जिंदे को मुर्दे से लाता है और मुर्दे को जिंदे से, और जिसको चाहता है उसको बेहिसाब अता फरमाता है। खुदा ताला की मिल्कियत की तो ये शान है, अगर किसी को कुछ देता है तो देने के बाद भी उसका हकीकी मालिक वही है, बल्कि जो चीज़ देता है उसका मालिक भी वही रहता है, और जिसको देता है और उसका मालिक भी वही है, गोया कि मालिकों का मालिक भी वही है। यानी अल्लाह ने अपनी बादशाह से जिसको जो चीज़ दी, देने के बावजूद अल्लाह ही उसका मालिक है, और जो चीज़ दी है उसका मालिक भी अल्लाह ही है। यानी जिसको जो चीज़ दी है उसका मालिक भी अल्लाह ही है, और जो चीज़ दी है उसका मालिक भी अल्लाह ही है, कि अल्लाह मालिकों का भी मालिक है। इस्लामियात पर नज़र रखने वाले जानते हैं, एक मुसलमान होने के लिए जिस तरह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत, उसकी परस्तिश का अकीदा रखना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह वालों से मोहब्बत और अकीदत रखना भी ज़रूरी है। अंबिया, औलिया, बुजुर्गान दीन, मशाइख व अकाबिर और बंदगान सालिहीन का एहतराम, उनकी हर वो चीज़ जो उनसे निस्बत रखे उसकी ताज़ीम और तकरीम और पास व अदब ईमान व इस्लाम की जान है, बल्कि ईमान की हिफाजत है। ईमान पर कायम रहने और ईमान पर मरने के लिए नहायत ज़रूरी है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फ़राइज़, वाजिबात व दिगर अहकाम शरअ की अदायगी मुसलमान की लाजिम है, लेकिन जिनके ज़रिए और वसीले से अल्लाह ने नमाज और रोज़ा और दीनी उमूर अता फरमाए हैं, उनको भूल जाना, फरामोश कर देना, उनसे मोहब्बत व अक़ीदत ना रखना, बल्कि उनकी बारगाह में बेअदब हो जाना, उनको बड़ा भाई या अपने जैसा इंसान समझना इस्लामी दुश्मनी और मजहब से दूरी है। जो लोग नमाज और रोज़ा, हज, ज़कात का तो इकरार करते हैं, लेकिन जो नमाज लेकर आए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वसीले से रोज़े मिले, जिनके वसीले से हज मिला, उनका वो अदब नहीं रखते, उनका वो पास नहीं रखते। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से हमें नमाज से मोहब्बत होना चाहिए, रोज़े से मोहब्बत होना चाहिए, हज से मोहब्बत होना चाहिए, ज़कात से मोहब्बत होना चाहिए, इसी तरीके से उस बाकमाल हस्ती से भी मोहब्बत होना चाहिए जिनके ज़रिए से हमें नमाज मिली, हमें रोज़ा मिला, हज मिला, और जिनके तुफ़ैल से हमें ज़कात अदा करने का तरीक़ा मिला। लेकिन अफसोस, तमाम आमाल से तो मोहब्बत, लेकिन जो ये तमाम आमाल जिनके वसीले से मिले उनसे बाज़ लोग बेअदबी और क्या है नाज़िबा कलिमात उनकी बारगाह में करके अपने गुस्ताखी और जहालत का मुजाहरा करते हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे भाइयों, कभी कभी अंबिया किराम या बुजुर्गान दीन ने बतौर आजिज़ी और इंकिसारी खुद अपने बारे में ऐसी बातें भी फरमाई हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे ही तरह हैं, ये तुम भी इंसान हो और हम भी तुम्हारी तरह हैं। अब ये हरगिज़ मुनासिब नहीं कि हम उनके बारे में वो अल्फाज बोले जो उन्होंने खुद अपने बारे में बोले। यानी अगर नबी ने, अंबिया किराम ने, अल्लाह वालों ने अगर ये कह दिया है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तो अभी आम लोगों का भी ये तरीक़ा नहीं है कि उनको अपने ही तरह कहे। जैसे कोई बड़ा लीडर, एमएलए, कोई मतलब क्या सांसद, कोई बड़ा सीएम जब पब्लिक के सामने आता है तो क्या कहता है हाथ जोड़कर कि भाइयों मैं आपका सेवादार हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। तो अब पब्लिक के सामने वो ये कर रहा है, उसकी आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है। लेकिन अब पब्लिक का क्या होता है, पब्लिक उससे अपना लीडर मानते हैं, उससे अदब देते हैं, उससे खादिम नहीं मानते कि भाई तुमने तो अभी स्टेज पर कहा था तुम हमारे सेवक हो, खादिम हो, सेवादार हो, तो हमारी सेवा करो, हमारे खादिम हो।
नहीं, बल्कि पब्लिक उससे अपना लीडर मानती है, अदब देती है। तो इसी तरह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने बाज़ जगह अपने आप को एक आम बशर कहा गया, ज़ाहिरी सूरत में आम बशर, या कहा कि हम भी तुम्हारी ही तरह हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनकी उम्मती उनको अपनी ही तरह आम बशर समझे, बल्कि वो बशर तो हैं। वो बशर किस लिहाज से हैं? जिस तरह हमें भूख लगती है उन्हें भी भूख लगती है, हमें थकान होती है उन्हें भी थकान होती है, हमें चोट लगती है उन्हें भी चोट लगती है। इस लिहाज से ज़ाहिरी शक्ल सूरत में बशर हैं, लेकिन असल मानों में वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये हरगिज़ हमारे लिए मुनासिब है कि हम उनके बारे में वो अल्फाज बोले जो खुद उन्होंने अपने बारे में बतौर आजिज़ी बोले, क्योंकि बिला ज़रूरत अपनी शान बयान करना, अपना मकाम बताना अहले फजल और कमाल का तरीक़ा नहीं है। यानी जो इल्म वाले लोग होते हैं वो अपनी शान बयान नहीं करते फिरते कि मैं ऐसा हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, अल्लामा हूँ, फलाँ, बल्कि कहते हैं भाई मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ इल्म आता है, मैं कहाँ मुफ्ती हूँ, अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ये आजिज़ी इनकिसारी करने वाले होते हैं। तो उन्होंने एक बात जगह कहा भाई मैं एक आम इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह के इंसान हूँ। तो अब आम इंसानों को हुक्म थोड़ी है कि उनको अपने ही तरह कहें। इस्लाम में तौहीद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहें, उसका जिक्र करते रहें और उसी का नाम लेते रहें, बल्कि इस्लामी तौहीद यह है कि जिसका जिक्र अल्लाह को पसंद है उनका भी जिक्र करते रहें। तो बात ये चल रही थी अल्लाह वालों से मोहब्बत। तो जहाँ भी कहीं अल्लाह करीम ने अपना नाम जिक्र किया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूर जिक्र है। तो अब कोई बंदा ये कहे कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, मैं नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक तो मानूंगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है मैं नहीं मानूंगा, तो मुसलमान नहीं होगा। ठीक है ना। कुरान में कहीं भी अगर आया अती अल्लाह तो अती और रसूल का जिक्र ज़रूर है। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, मखलूक में पहला काफिर और गैर मुस्लिम इब्लीस शैतान है, लेकिन वो ईमान से खारिज इस वजह से नहीं हुआ कि वो अल्लाह को नहीं मानता था, ये अल्लाह को एक नहीं मानता था, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर रहा था, अल्लाह की तौहीद को मान रहा था, लेकिन एक अल्लाह के ख़ास बंदे, उसके महबूब बंदे अल्लाह वाले आदम अलैहिस्सलाम की उसने ताज़ीम से इनकार किया, तो वो अपने ईमान से हाथ धो बैठा। तो आज भी अगर कोई अल्लाह अल्लाह करता रहे, अल्लाह को मानने का तौहीद का दावा करे, लेकिन अल्लाह कि महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त एहतराम अदब ना करे, तो आज वो भी अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा जिस तरह शैतान ईमान से खारिज हो गया था। तौहीद के माना सिर्फ अल्लाह की ज़ाहिरी इबादत को जाना और ये ना जाना कि ताज़ीम आदम का भी हुक्म अल्लाह ही ने दिया है। यानी अगर वो आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम कर लेता तो यकीनन ये खुदा ताला के हुक्म और उसकी फर्माबरदारी होती। आज फ़िरक़ों और फितरों के इस दौर में हर एक की यही ख्वाहिश रहती है कि मैं बजाय किसी और की बात सुनने के अल्लाह के रसूल पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को देखूं कि आखिर हुजूर ने इस बारे में क्या फरमाया है। आज ऐसे लोगों की तादाद भी काफ़ी है जो अम्बिया औलिया की शान और मर्तबे के कायल नहीं हैं, यानी अम्बिया किराम के मर्तबे को नहीं मानते, उनके मनसूबात से तबर्रुक उनकी यहाँ कोई चीज़ नहीं। ऐसे लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हम आपके सामने ये अहादीस का सिलसिला लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड के अंदर, पार्ट के अंदर आप उन अहादीस को सुनेंगे जिनके अंदर औलिया किराम, अंबिया किराम, अल्लाह के नेक बंदों के मरातिब अहादीस की रोशनी में पेश किए जाएंगे और जो अल्लाह करीम ने उनकी जो शान और मरातिब बयान किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने बताए जाएंगे।